కార్యక్రమానికి స్పీకర్గా శ్రీ ఎంఎన్ స్వామి ఐపీఎస్ గారు రావడం గొప్ప విషయం. ఇన్ని రోజుల వరకు ఇక్కడ మనము చర్చించని సబ్జెక్టు ఇంతవరకు మనకు స్పీకర్గా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు టచ్ చేయని సబ్జెక్టు ఈరోజు మనం వినబోతా ఉన్నాం. అలాంటి మరి గొప్ప సబ్జెక్ట్ మీద స్పీచ్ చేయడానికి ఈనాడు మన ప్రబుద్ధ భారత్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ ఎంఎన్ స్వామి ఐపీఎస్ గారిని వేదిక అలంకరించిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ప్లీజ్ కమాండ్ ద డయాస్ సార్. Very much. Few days back I had come here with my brother and my cousin. They are running industries in Bangalore. They wanted to meet Ravi Kumar Nara regarding Dicky, and they wanted to strengthen the Dicky in Bangalore. At that time they said let us meet him. Then I came along with them. When I came here, then I saw your activities. I was so happy. Then Mr. Murthy was there. I'm sorry Murthy, today you were supposed to speak but they told me to speak. Thank you very much, God bless. So actually, like Mr. Murthy was there, Balakrishna was there, Nara was there, and Sanmanishri Siddhoji Rao was there. Like we were sitting and together, generally we were talking. We were talking about Ambedkar, we were talking about the caste system, how they came and history of our people and all that we were just discussing. That time, they said, you are talking some issues. I think this we can elaborate and we'll speak in the conference hall. Then I said it's okay. Then this today it has materialized. I am very much thankful to you all who have invited me and who assembled here to listen to me. Thank you very much. And you see what happened. I studied in government colleges and then I was working in government company, then joined IPS. Wherever I went, one thing I noticed, so-called candidates who come on reservation, they are very talented, they do excellently in their job, but in spite of that, on their background, and people will be saying, these people are not so up to the mark. This I was hearing, one thing. Second, in our dictionaries, like you take out a Telugu dictionary, Tamil is not like that. Malayalam dictionary, Kannada dictionary, you take out those dictionaries. They are all Dravidian languages, but the language which is spoken even in our houses, in our home, that those words and that language is not enlisted as a language of Dravidian language in our dictionaries. Like Madiga, Mala will be speaking in his house some words, and I'm telling you, take out your Telugu dictionary, find out in that dictionary, the normal words which you see in your house, they are not in your Telugu dictionary. Same thing happened with me. I'm a Pakka, what we can say, scheduled caste, Volaya. Volaya is like scheduled caste in Karnataka, and what the language that we speak in our house, almost most of the words are not there in Kannada dictionaries. Published by Kannada Sahitya Parishattu, Mysore University, published by so many universities, published by so many individuals, those words are not there. Then I wanted to find out what is the root of Kannada and why my language is different from Kannada. I wanted to find out. While I started searching these issues, then I came to know, like all the scheduled caste people and most of the OBCs of India, they are all connected to one single parenthood at one point of time. They all come from same roots. Like nutshell, I will tell you, you take out scheduled castes and some OBCs, their caste names like Madiga, Mala, Palla, Pulayan, Mahar, Pramara, Chammara, you take any number of these communities, you go back and start seeing their history, they all will come and join at one point. They all come from same roots. Like nutshell, I will tell you, you take out scheduled caste and some OBCs, their caste names like Madiga, Mala, Palla, Pulayan, Mahar, Pramara, Chammara, you take any number of these communities, you go back and start seeing their history, they all will come
and from that point they started migrating to different places. At that point they were all speaking one language, just one language, and I would like to call in India, in Indian context, that language as something like a Proto-Dravidian language. Proto-Dravidian language means it is mother of all the Dravidian languages, which was spoken in antiquity, very remote time, and from that language different languages have come. And then I realized what could be that Proto-Dravidian language. How was that Proto-Dravidian language? Then I started finding out the Proto-Dravidian language. Then what happened? I came across Sumerian language, which was spoken in Iraq 10,000 years back. 10,000 साल पहले इराक देश में एक भाषा को लोग बोलते इस्तेमाल करते थे, बोली बाली था उधर, वो भाषा को लोग बोलते सुमेरियन लैंग्वेज। वो सुमेरियन लैंग्वेज में जो भी जितने शब्द है वो सारे ज्यादा से ज्यादा सारे शब्द हमारा द्रविडियन लैंग्वेजेस में है। द्रविडियन लैंग्वेजेस क्या क्या है? तेलुगु है, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, कुरुक, मालतो, so many Dravidian languages are there, plenty of them. And उसमें क्या है, हमारा घर में जो हम बात करते हैं उसको हम मालवा लैंग्वेज बोलते हैं, मालवा लैंग्वेज बोलते हैं। और हम जो गांव में रहते हैं, अभी एक बहुत बड़ा टाउन है, उसका नाम है मलवल्ली टाउन। एंड हम बता रहे पूरा इंडिया में हजारों गांव है जिसका नाम मलवल्ली, मालगांव, मालेगांव, मालापुर, मालपल्ली जैसा माला आता है। और इससे मैं बहुत रोमांचित हुआ और मैं देखने लगा कहां ये माला है। और मैं पूरा लिस्ट किया, पूरा कर्नाटक में कितना है वो लिस्ट किया, और पूरा इंडिया में क्या है वो लिस्ट करने लगा, और पूरा दुनिया में कुछ कंट्रीज है, देश है, वो देश का नाम माला से चालू होता है। मलेशिया, मालद्वीपा, माली, मेलेनेशियन जैसा। और मैंने सोचा अच्छा ठीक है, सिर्फ माला ही मैं देख रहा हूं, ये मादिगा नहीं है क्या? तो मादिगा का मैं रूट ढूंढने निकला। जब मादिगा का रूट्स देखने के लिए मैं गया, बहुत अच्छा चीज मुझे मिला। हम बता रहे आपको, सुमेरियन लैंग्वेज में मदा मतलब जमीन, मदा मतलब जमीन, और ग मतलब वो आदमी, या वो आदमी, ग मतलब वो आदमी, मद का मतलब वो आदमी जो जमीन का जमींदार है। दैट इज द मीनिंग इन सुमेरियन। मादिगा मतलब लैंडलॉर्ड। और कन्नड़ में माला या माला मतलब जमींदार, माड़व मतलब जमींदार। कन्नड़ में माला मतलब लैंड या जमीन, और माड़व मतलब जमींदार। मैंने सोचा मादिगा का मतलब भी जमींदार है और माड़व का मतलब भी जमींदार है। आजकल कर्नाटक में ये माड़व या माला वर्ड ज्यादा चलती में नहीं है। आप सब हिंदी ज्यादा समझते हो ना, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा अंग्रेजी बंद कर दिया। बीच में मैं अंग्रेजी भी चालू कर सकता हूँ, वो ठीक है। अच्छा, सो कन्नड़ में होला बोलते हैं, होला को माड़ा बोलते हैं। माड़ा मतलब जमीन, होला मतलब जमीन। और कर्नाटक में ये जो शेड्यूल कास्ट है उन लोगों को क्या बोलते हैं? माड़ा, ये होलिया बोलते हैं। और केरला में जमीन को पुला बोलते हैं, और वहां का जमींदार को या वहां का एक शेड्यूल कास्ट है वो पुलयन है। और तमिलनाडु में पल्ला है। सो ऐसे में देखते गया सुमेरियन लैंग्वेज और कन्नड़ लैंग्वेज में, और तमिल, तेलुगु और ये तुलु और मलयालम लैंग्वेज में जमीन बोलने के लिए टू से
लैंड जितने शब्द है वो सारे मैंने लिस्ट किया, 140 वर्ड्स को मैंने लिस्ट किया, 140 शब्द को मैंने लिस्ट किया। वो हर शब्द से जमीन का मतलब निकलता है, जैसा मद मादिगा, माड़ा माड़वा, होला होलेया, कुक्का कुक्का मतलब एक तरफ जमीन है, कुक्का एक एक्चुअली शेड्यूल कास्ट का नाम है कर्नाटक में, और कुर मतलब एक तरह का जमीन है, और कुर्गा या कोरगा इज ए शेड्यूल कास्ट इन कर्नाटक, और पुले मतलब जमीन है, और पुले इज ए शेड्यूल कास्ट इन केरला। और मैंने ऐसे देखते लगा, मुश मतलब जमीन है, झारखंड में मुशाहार इज ए शेड्यूल कास्ट, और ऐसे में 140 शब्द से 140 जाति है, और सारे जाति शेड्यूल कास्ट में है, कुछ जैसा मुसाहार या 2-3 शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। तब मुझे पता चला दीज पीपल आर वेरी मच रिलेटेड टू द लैंड, जमीन से ये लोग जुड़े हुए हैं। जब ये जो मानव अनागरिक मानवता, ये क्या लोग बोलते हैं, बंदर था या मंकी था, उस जमाने से जब वो आदि मानव बना, उसके बाद सिविलाइज्ड होने लगा, भाषा वो बोलबाली करने लगा, उसके बाद लिखना चालू किया, एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया, और एग्रीकल्चर चालू किया। उस टाइम से आज तक ये जाति लोग, ये सारे जाति लोग जमीन के साथ है, और इन लोगों का नाम जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए हम बता रहे एक चीज, आप सारे लोगों को 1-1 करोड़ रुपए लोग दे देगा, मान लो कितना रुपए, 1-1 करोड़ रुपए दे देगा, तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग हम बता रहे हैं जमीन खरीदेगा, जमीन खरीदेगा। हो सकता है कुछ ज्वेलरी खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, पिक्चर देखेगा, दारू पिएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन बहुत पैसा बचता है, उसको लेके जाके क्या करेगा? जमीन खरीदेगा। हम बता रहे हैं आपको, इंडिया में बहुत साल से क्या हो रहा है, कोलेआइजेशन इज हैपनिंग या मालवाइजेशन इज हैपनिंग, और मादिगाइजेशन इज हैपनिंग, नॉट संस्कृताइजेशन। लोग क्या बोलता है, आदमी पढ़ के लिख के अमीर बन के वो संस्कृताइजेशन तरफ जाता है, या संस्कृतिकरण हो जाता है। संस्कृतिकरण मतलब वो तो रिफाइंड हो जाएगा, और वो संस्कृत जैसा भाषा बोलने लगेगा। हम बता रहे ऑल दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। वो एक एम.एन. श्रीनिवास सोशियोलॉजिस्ट रहा, वो संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट इंडिया में डाला। मैं बोल रहा हूँ व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग इज जमींदाराइजेशन और कोलेआइजेशन, मालवाइजेशन या मादिगाइजेशन। पैसा ले लो, जाओ जमीन खरीदो, या अमीर बनो, जमीन खरीदो, यही हो रहा है। ओके ठीक है। हम लोगों को लोग, ये तेलुगु में बोलता कि नहीं पता नहीं, कर्नाटक में है और तमिल में है, कीड़, एक वर्ड है कीड़, ये कन्नड़ा वर्ड है कीड़ू, वन वर्ड इज देयर कीड़ू। तेलुगु में है कि कीड़ू, कीड़ू कीड़ू मतलब नीचे, बैड हम बता रहे हैं, बैड ठीक है। अब इन कन्नड़ में भी आजकल इसका मतलब बैड जैसा है, बट इसका मतलब एक्चुअली हम बता रहे हैं सुमेरियन लैंग्वेज में की मतलब जमीन, लू मतलब राजा, कीड़ू जना, जना मतलब आदमी लोग, कीड़ू जना मतलब द पीपल ऑफ द किंग, किंग ऑफ द लैंड। इस जमीन का जो राजा है उसका लोग कीड़ू जना, दैट इज द मीनिंग इन सुमेरियन। मैंने सोचा सारे लोग शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को क्या बोलता है, कीड़, कीड़ बोलता है कन्नड़ में, तब कीड़ क्यों बोलता है? आजकल तो इसका मतलब बहुत नीचा आदमी हो गया, लेकिन द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ दैट इज राजा। So whatever name is given to a scheduled caste, that name, that word had a very very great meaning at one point of time in the history of India. और कन्नड़ में एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट आया इन द 12th century, बसवण्ण।
श्री बसवेश्वर, आप जानते होंगे या बसवेश्वर। सो बसवेश्वर ने अपना एक वचन में बोला, ಹೊಲಸು ತಿನ್ನುವವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಮಾದಿಗ। जो आदमी गंदा चीज को खाता है वो है वलया, वलया मतलब माला, और जो मारता है एनिमल्स को, जो मार डालता है वो मादिगा। वो बोल दिया अपना वचन से। और पूरा कर्नाटक में लोग बस इसी को पकड़ के बैठा है। वलया मतलब वो जो गंदा चीज को खाता है। अच्छा, गंदा चीज क्या है? जब भी हम पूछते गंदा चीज तो बोलेगा बीफ खाएगा या मटन खाएगा। अरे मटन खाने के लिए so many communities are there in the world. Why they are not called walayas? Holasu tinnuone walaya. Then again I started searching the meaning of the word hola, holasu and all that. The meaning of holasu is, in the original it is pulasu, and pulasu in Kannada, and in Tudu it is pula or puli. It simply means siri, or what I can say, prosperity, wealth. A fellow who has got wealth is walaya. That is the original meaning. A fellow who has got wealth, his original meaning is wealth. वो walaya है। और मादिगा is again सुमेरियन लैंग्वेज में मदम। मदम मतलब again wealth. It is bounteous, plentiful wealth, जो सिरी संपत। सो जिसके पास वेल्थ है वो आदमी है, उसके पास हम सुमेरियन में बोलते थे उनके पास मदम है। मदम मतलब जो वो मादिगा है, मादिगा पास मदम है। So these two communities were very, very, very rich communities. They had a land and they were ruling class. अच्छा, now I will tell you, ये रूलिंग क्लास है तो ये कम्युनिटी से कोई राजा आया है क्या? I'll tell you very, very interesting things. I'll tell you. कर्नाटक में आपका आंध्रा में भी है वो, he was ruling. You know the Pallava kings, Chalukya kings, Hoysala kings, and Kadamba kings. I will just talk about these very ancient four kingdoms and dynasties. One Moras, he has written a book, Kadamba Kula. In that he says, everybody in our childhood we read, and in our exams we wrote, Kadambas were Brahmins, and Kadambas a great king, बहुत बड़ा राजा था, मयूर वर्मा या मयूर शर्मा। वो मयूर वर्मा या मयूर शर्मा एक ब्राह्मण था, ऐसा हमने पढ़ा और एग्जाम में लिखा और पास हो गया, आईपीएस बन गया। लेकिन मैंने वो कदम्ब कुला एक किताब, इट इज रिटन बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर लॉन्ग बैक। वो किताब में वो लिखता है, कदम्बाज वेर नाग कुला किंग्स। कुला मतलब जाति, आप जाति मोटा मोटी जाति बोल सकते हैं, कुला मतलब जाति। सो नाग कुला किंग्स। नागा मतलब अंबेडकर बोलता है अपना राइटिंग्स में और अपना भाषण में, अंबेडकर बोलते थे नागा मतलब हम, नागा कुला वाले मतलब हम। सो हमारा जाति का है कदम्ब राजा। दिस इज रिटन बाय दैट मोरेस। आई हैव दैट बुक, आपको भी मिलेगा। आप www.archives.org में जाके कदम्ब कुला ऐसा टाइप कर दीजिए, वो किताब आपको डाउनलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा चीज, पल्लवास। पल्लवास कौन है? एक्चुअली पल्लवास कौन है इसको पता लगाने के लिए बहुत लोग बहुत किताब लिखा है। Almost all the write-ups before 1935, they say that one very good writer पल्लवास के बारे में जो लिखा है उसका नाम है गैब्रियल जोविन दुब्रॉइल। फ्रेंच आदमी था, ये पौंडीचेरी में बैठ के पल्लवास के बारे में बहुत अच्छा किताब लिखा। किताब का नाम है द पल्लवास।
ये भी आपको archives.org में मिल जाएगा। वो बोलता है ये पूरा आंध्रा को नागा राजा ने रूल करता था। नागा राजा मतलब नागकुला राजा। नागा मतलब यहाँ सांप नहीं है, हम बता देंगे आपको नागा मतलब क्या होता है। सो वो नागा राजा उधर अपना दरबार कर रहा था। वो नागा राजा का बेटी के साथ एक पल्ला ने शादी किया। आज भी पल्ला मतलब शेड्यूल कास्ट का आदमी होता है, हम बता रहे हैं। सो एक पल्ला ने नागा राजा का बेटी के साथ शादी किया और ये नागाराज पूरा ये थोड़ा सा फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्रा और पूरा तमिलनाडु को उनको दे दिया। एंड दिस पल्लवा राजा स्टार्टेड हिज किंगडम इन दैट एरिया एंड ही स्टार्टेड रूलिंग। एंड पल्लवा का मूल भी क्या है? नागकुला। ठीक है, नागाज मतलब क्या हो गया? नागाज मतलब जोर से बोलिए, हम है। नागाज कौन है? हम है। थैंक यू। और होयसड़ा का मतलब क्या होता है? होयसड़ा आप कुछ हिस्ट्री पढ़े हैं तो होयसड़ास were again Karnataka's kings. They didn't have much influence in Andhra, but they had a very strong influence there. But I'm sure you know very well that Pallavas and Chalukyas, they had a very strong presence in Andhra. Because that time there was no Andhra, there was no Karnataka. The whole thing was one country. ठीक है। So होयसड़ा उसके बारे में कुछ शिला शासन है, एपिग्राफीज। कुछ वो एपिग्राफी, most of these kind of epigraphies which have written very high about their kings, they start only after 5th century, but 9th century के बाद वो जो लिखता है पूरा what I can say बहुत cooked up stories है। उसमें लिखता है होयसड़ा king was one सड़ा। वो एक साधु के सामने बैठ के कुछ सीख रहा था। उस समय एक